हाँ भाई क्या हाल है भैया वेलकम टू another episode of Ask Ganji Swag and as you may have judged by the missing face and the title that this one is with Mrs. Hi Swag. Hello, everyone, how are how you? I'm fine. Thank you रात for का having me. 1:15 हो रहा है बच्चे सुला के ये टाइम मिला है हमें एंड सो या सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि विल बी डूइंग अ कपल ऑफ पॉडकास्ट टुगेदर व्हाइल आई एम हियर इन लंदन तो आप लोगों ने काफ़ी सवाल भेजे तो विल ट्राई टू हैव एज मेनी क्वेश्चन एज वी कैन काफ़ी सवाल आए थे ख़ासतौर पे आपके लिए भाई. So okay, the first one says, hello Junaid bhai and Mrs. I'm glad to hear that you are doing another podcast together, as it is always a pleasure to hear from people who are working in today's world and managing a family simultaneously with conscious mind. I have an observation and would like to have you both discuss on it. Why are opinionated females seen as a threat to family? Since you have a very large viewership of some sensible listeners, I would like to state my opinion and you can elaborate it further. I'm a post grad doctor, 31 years, female, Karachiite. I don't have any guy friends, but with colleagues and juniors, seniors, the office work communication goes quite well as I work in a setup where work ethics are well regulated. Opinions are welcome, most of the time based on your experience and knowledge. But when with the general population, females who have an opinion are outcasted and looked down upon. लड़कियां ज़्यादा नहीं बोलती, ये बॉसी है, घर कैसे बसाएंगे आजकल की लड़कियां, इनको तो हर चीज़ में मसला है, जो ज़्यादा पढ़ लेती हैं उनका दिमाग ख़राब हो जाता है. आई शुड ऐड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अपर मिडिल क्लास हु हैव अ बेटर नॉलेज सेंस देन देयर काउंटर पार्ट्स एंड दिस बीइंग ओपिनियनेटेड डज नॉट मीन ट्रैश टॉकिंग और अबाउट डे टू डे ड्रामास. Furthermore, these traits are also being added for rejecting a potential girl for proposal, and boys are a part of this discussion making. Since each gender can learn from another, why do we feel threatened? I firmly believe discussing ideas respectfully should be taken as an onus to higher mental function rather than getting uncomfortable with it. She might add another perspective to the topic, or maybe she faced things differently that might help in finding solution to a problem. ये क्या आपकी बात हो रही है? I don't know. Kindly both of you नहीं, discuss from your experiences. I hope अच्छा वो generally कह रही वो है. एक जनरल बात कर अच्छा, रही हैं. I hope we learn tolerance and acceptance. Looking forward to hear from you guys. Peace. So yeah, opinionated females are seen as a threat to the family. Since you are an opinionated lady yourself, kindly elaborate. Um, yes, absolutely. Even though मैं अपनी प्रिविलेज पहचानती हूँ इस बात में कि आई हैव नॉट लिव्ड इन पाकिस्तान, बट बीइंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी फैमिली, ऑल बीट इवन इफ अब्रॉड, we used to visit Pakistan a lot every year, and I used to see my cousins, and then obviously मेरे घर का भी environment वही upper middle class. That's exactly how they feel कि even the upper middle class feel this way कि लड़कियों को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए है. उसमें आई थिंक प्रॉब्लम इतना लड़कियों के बोलने का नहीं है, मर्दों की फ्रेजाइल ईगोज़ का है कि उनको लगता है कि अगर लड़की बोल रही है तो अरे ये तो वीकर सेक्स है, ये हमें कैसे समझा रही है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. मैंने किसी से बात की थी एक मर्तबा, एंड दे सेड कि हमारे घर के जो रूल्स में, एंड दिस इज़ लाइक आई एम टॉकिंग अ वेरी वेरी बिग जर्नलिस्ट, वो मुझे बता रहे थे कि हमारे घर में सारे डिसीजंस जो हैं वो लेडीज़ लेती हैं, मगर रिश्तों के डिसीजन जहाँ पर आती हैं ना, जहाँ पे रिश्ते करने होते हैं शादियों के, वो मर्द करते हैं. So like बिकॉज बाकी डिसीजन क्या मतलब सौ आज खाने में क्या पकेगा, यस, ये सौदा सारे क्या तो लाना औरतों के है, हैं. हाँ, बिल कब भरना है, सोफे कौन से आएंगे, पर्दे कौन से. यस, ओके. ये तो सारे डिसीजंस जो हैं वो औरतों के हैं. मगर जो है, जो जहाँ पे आती है शादियों की और रिश्ता तय करने की बात, उसमें जो है वो लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि औरतें बोलें, वो मर्द करते हैं. Maybe they're too egocentric about the caste system. क्योंकि पाकिस्तान में ये भी तो है ना जी, हम आ रही हैं तो हम चौधरियों में नहीं करेंगे उसमें. आई डोंट नो मैन, लाइक या मगर ये इसमें वाली यही वजह. है हाँ. कि मोर देन विमेन जिनके ओपिनियंस हैं, आई थिंक मर्दों की ईगोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हैं. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बिकॉज देखें, हम लोग वही चीज़ें करना चाहते हैं जो हमने. देखें, हर बंदा ना अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है.
nobody is open to new ideas or new set of ideals. जो सारी ज़िंदगी घर में देखा है वो चाहते हैं वही चीज़ हम भी रिपीट करें, यानी सारी ज़िंदगी अगर देखा है बाप ने माँ को कंट्रोल किया, सो दे अज्यूम कि हमने भी आगे ऐसे ही करना है. बिकॉज वही वाली बात, मछली को पानी के अंदर ये नहीं पता होता कि वो पानी के अंदर है, और उसको ये भी नहीं पता होता पानी के बाहर भी एक दुनिया है. तो वो अपने इको चैम्बर में रहने के आदी होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में, और उनकी ट्रेनिंग ही यही है. उन्हें आसपास भी यही देखा है, चाचे मामू ताए को भी इसी तरह देखा है, बाप को भी ऐसे ही देखा है, तो समझते हैं कि ये ऐसे ही है. सो एनीथिंग दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइक देयर मदर और देयर सिस्टर्स, या तो वो फिर आउटकास्ट है, वो फिर गलत है, वो चालू है, वो 2 नंबर है, और उसका जो है कोई सीन नहीं है. और ख़ुद भी जो है ना, देखें ये इनसिक्योरिटीज़ उसी को ही होती हैं जिसकी अपनी कोई ख़ास अचीवमेंट नहीं होती ज़िंदगी में. तो जिनकी नहीं होती ना, वो फिर ताकत का इस्तेमाल करते हैं अपनी धौंस बिठाने का. वो चाहे गुस्से से हो, या वो बड़ापन दिखा के जी हम बड़े हैं, हमें ज़्यादा पता है. बस ईगो की बात है सारी. तो ईगो इजाज़त नहीं देती कि औरत हमारे सामने कोई ओपिनियन भी रखती हो. बस हम जो बोलें सर नीचे करके वो हाँ में हाँ मिलाए. अच्छा, इसमें ना मैं सिर्फ मर्दों को नहीं, इसमें मर्दों को क्यों कहा जाए, वो औरतें जो कि विमेन एम्पावरमेंट में यकीन ही नहीं रखती हैं, या जो यकीन नहीं रखती कि अब जैसे वो थी वो रिश्ते वाली आंटी जिन्होंने कहा था कि मिसेस भाई हाँ, कि जिन्होंने कहा था कि लल्लो मत चलाओ. तो मतलब उनके नज़र में जो था वो एक शादी क्योंकि कामयाब शादी वही है जहाँ ज़बान नहीं जहाँ चलती. ज़बान ही नहीं चलती. मैं ये नहीं कहती कि खड़े हो जाओ लड़ाई करने के लिए या वट एवर इट इज़. किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे वो एशियंस हों, कहीं पर भी हो, किसी भी रिलेशनशिप में एक पार्टनर को एट सम पॉइंट चुप होना पड़ता है. अगला जो है वो अपनी भड़ास निकाले, अगला अपने आप को वेंट करे, तो फिर ओके नाउ दैट यू कूल डाउन, हियर माई पॉइंट ऑफ व्यू. एंड वही एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होती है. ठीक है, मैं ये नहीं बिल्कुल कंडोन करी कि जी आप आस्तीनें चढ़ाएं, और अगर कोई जो है वो आप सुने भी नहीं बात, अगर कोई आपको मुसलसल एक आदत के तहत आप एक पंचिंग बैग भी मत बने. मगर अगर जो है वो किसी ने आपको कुछ कह दिया, तो मैं ये भी नहीं कह रही कि आप जो है ना रिटेलिएट, उसको फ़ौरन इम्पल्सिविटी भी कहते हैं उसको, एंड दैट्स नॉट राइट आइदर. सो आई मीन फॉर अ वुमन अ स्मार्ट थिंग इज़ कभी कभार मौके को, ऑल बैटल्स आर Depending on नॉट, the situation. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ठीक है ना, कि आप जो हैं वो कभी येस डोंट टेक नॉनसेंस. आपकी फैमिली को कोई कुछ कह रहा है, व्हाई शुड यू हियर दिस. आपको जो है वो कॉन्स्टेंटली मेंटल अब्यूज़ मिल रही है, व्हाई शुड यू बी सिटिंग डाउन फॉर इट. आपके ओपिनियन को डिस किया जा रहा है, आपको लोगों के सामने डांटा जा रहा है, तो नो, यू कैन नॉट स्टैंड अप फॉर इट, और आपको फिर अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा. मगर अगर किसी का एक हस्बैंड का, या इवन फॉर दैट मैटर, वाई जस्ट हस्बैंड, इवन किसी वाइफ का जो है कोई ख़राब दिन गुजर रहा है काम पर, ठीक है, या घर में भी, इफ़ शी इज़ अ हाउस वाइफ, मेरी नज़र में तो वो भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. थक गई बच्चे संभाल के, ठीक है ना, शी इज़ हैविंग अ फाउल डे एट होम, या ही इज़ हैविंग अ फाउल डे एट वर्क, कहीं आके वेंट कर रहे हैं. तो उसमें ये है कि पार्टनर्स को जो है वो ऑब्वियसली like let them vent, and then when they cool down, ठीक है चलो ओके, you were saying this was wrong, I didn't appreciate it, let's sit down and talk about it, communicate करें और उस मामले को ख़त्म करें. मगर उनकी नज़र में तो ये ना कि लल्लो मत चलाओ, बस बोलो ही नहीं, गूंगे हो जाओ. बस गूंगियों से शादी कर लो. मगर उसमें भी उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो लेती हैं लड़कों वालों से ओपिनियन. तो लड़के की माएँ जो हैं वो कहती हैं कि हमें ज़्यादा बोलती भी बहू नहीं चाहिए. हाँ, एट सम पॉइंट आई डिडंट वांट टू से दिस, आई एम ग्लैड यू डिड. कहीं कहीं फिर वो ये जो परपेचुअल साइकिल जो है ना, वो इट इज़ ऑल्सो, आई वोंट से इनिशिएटेड बट परपेचुएटेड बाय विमेन एज वेल. वो माएँ होती हैं वो जो टॉक्सिक हो जाती हैं, और फिर वो मर्द बन जाती हैं. हाँ सोच में वो, क्योंकि उनको ना वैलिडेशन चाहिए होती है मर्दों से, कि उनके घर के मर्द कहें वाह 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 क्या लड़की लेकर आई, बिल्कुल अपने जैसी, जैसे तुमने चुप करके हमारे जूते खाए थे, बातें सुनी थी, चलो जूते भी ना खाए हों, बातें सुनी थी, हमारी जो है ना वो अब्यूसिव नेचर बर्दाश्त की थी, उस तरह की लड़की बहू लेकर आई, हमें तो बस ऐसी ही लड़की चाहिए अपने ख़ानदान के लिए. तो ये भी होता है भाई. ऑल्सो दूसरी चीज़, ये जो ओपिनियनेटेड ख़वातीन इसलिए भी थ्रेट होती है क्योंकि हमारे ना मर्दों को कम्युनिकेट नहीं करना आता. उनको कभी सिखाया नहीं गया हाउ टू डील विद देयर इमोशंस.
उनको कभी यही नहीं, वो मैस्कुलिनिटी में ही इतना बिल्कुल गर्क हो जाते हैं कि they're not taught to be vulnerable, they're not taught to be empathetic, they're not taught to be sensitive, they're not taught to be having an emotional heart to heart. तो बिकॉज उनको कम्युनिकेशन भी नहीं आती ना. अब ओपिनियनेटेड औरत क्या करिए, वो एक अगर ओपिनियन रेस कर रही है तो शी इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग, बट बिकॉज कभी ट्रेनिंग ही नहीं है कि उसको लेना कैसे है. कभी कभी वो ओपिनियन आपके खिलाफ भी हो सकता है. एक तो हमारे मर्द ना नो भी नहीं सुन सकते ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, नो सुन ही नहीं सकते. बिल्कुल नहीं। आप किसी का वो फोन आ रहा है, फोन काटो तो वो और फोन करते हैं कि अच्छा जिंदा है, हाथ चल रहे हैं तो मैं दोबारा फोन करूँ. अबे काटा किसी वजह से काटा है. हमारे लोगों में ना नो सुनने की आदत नहीं है. तो और वो कहते हैं ना, पीपल ओनली वांट यू टू से थिंग्स दैट दे ऑलरेडी बिलीव इन. वो अपनी ही चीज़ जो खुद चीज़, जिन चीज़ों पे खुद यकीन करते हैं, वही चीज़ एक औरत की आवाज़ में सुनना चाहते हैं. तो कोई नया चीज़ सुनने के कायल नहीं है, काबिल भी नहीं है, कभी कम्युनिकेशन की नहीं है, तो फिर वो उसको भी वो एडमिट तो करेंगे नहीं जी मुझसे कम्युनिकेट नहीं हो रहा या आई लैक इन दिस डिपार्टमेंट. बस वो फिर यही कि भाई ज़बान बंद करा दो, चीख लिया, हाथ उठा लिया, कुछ खींच के मार दिया, बस इसी तरह धबड़दूस करके और धौंस जमा के बस किसी तरह आवाज़ बंद कर दो. तो यही वजह ओपिनियनेड औरत सवाल करती है कि भाई मुझे इसका जवाब चाहिए, और वो उनको जवाब देना ही नहीं आता. तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक बहुत कम परसेंटेज है जो कि को एजुकेशन में पढ़ती है. ज़्यादातर मुल्क तो औरत से पहली बार, मतलब ना महरम औरत से पहली बार मुलाकात ही शादी की रात होती है. उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी इमोशनल वेलबींग क्या होगी, या वो कितना ओपन अप करने के, वो उन्हीं चीज़ों का कायल होगा जो उसने एक टॉक्सिक सोसाइटी में देखा है. तो यही मेरी नज़र में तो ये एक बहुत बड़ी वजह है. और दूसरी चीज़ पता है क्या इसमें, एक ये भी है बहुत बड़ा. एक तो मुझे लगता है कि ये लफ्ज़ जो है ना फेमिनिज्म, ये एक ना गाली बन गया है, ज़बरदस्ती की गाली बन गया है. मतलब मर्दों को मैंने ये कहते, बल्कि अभी पढ़ा भी था कि आई बिलीव इन विमेंस इक्वल राइट्स बट आई डोंट बिलीव इन फेमिनिज्म. तो और है क्या हाउ फेमिनिज्म? इज़ दैट डिफरेंट? हाउ इज़ दैट डिफरेंट? आप फेमिनिज्म को उठाकर वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि हर फेमिनिस्ट औरत वही है जो बाहर निकल रही है. नहीं, आपको फेमिनिज्म मतलब आप इस तरह से नहीं कह सकते. यू कैन नॉट जस्ट से इट. ओपिनियनेटेड होना इज़ नॉट अबाउट फेमिनिज्म. आपके बेसिक ह्यूमन राइट है ये ओपिनियनेटेड होना, जो है ना कि आपका एक ओपिनियन होना चाहिए. आप घर में पार्ट ले रही हैं, आप घर के अंदर एक फंक्शनिंग मेंबर हैं. यू आर नॉट अ थिंग दैट वाज इन योर सिटिंग इन योर पेरेंट्स हाउस. ठीक है ना, उधर कोई नहीं सुनता था कि ओ शादी के बाद उधर जाके बात करना, उधर कोई नहीं सुनता कि तुम तो पराई घर से आई हो. सो दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट. पीपल शुड रियली अंडरस्टैंड दिस. एंड मुझे नहीं समझ में आता कि इसका पाकिस्तान में एंड क्या होगा. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. व्हाट आई सी सैडली इज़ कि पहले ही हम बचपन में सिंधी महाजिर पंजाबी लड़ाई देखी, फिर उससे थोड़ा सा बड़े हुए सुन्नी शिया लड़ाई देखी. अब जो है ना, मर्द औरत की लड़ाई चल रही है. अजीब, यू नो, लाइक लाइक देयर एट ईच अदर्स थ्रोट ऑल द टाइम. अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, बुरे से बुरा कत्ल हो जाए तो औरत ही जिम्मेदार है. जो मर भी गई है, जिसका गला भी कट गया है, उसी को ही लोग लान तान करें. मतलब इतना हार्टलेस तो शायद जानवर भी ना होते हों जितने हमारे लोग. मगर बस क्या वो हेट्रेड फॉर वुमेन है, हेट्रेड फॉर. और दूसरी तरफ हमारे यहाँ ना फेमिनिज्म समझते हैं जी. फेमिनिज्म का मतलब है स्लीवलेस आंटियाँ सिगरेट पीती हुई टांगे खोल के पार्क में बैठी हैं, वो फेमिनिज्म समझते हैं. देखिए, मगर अगर किसी औरत की वो चॉइस है तो उसको रिस्पेक्ट करो, अपनी नज़रें झुकाओ और साइड पे हो जाओ. नहीं ठीक है ना, खैर, उसको वो उठा एक के, लंबी लंबी डिबेट है, वो उसको एक छोड़ो. लंबी डिबेट हो नहीं नहीं, जाती है. इसमें आप छोड़ें भाई. लोग इतने तरसे में मैंने को इनको दबा देते हैं, आपके लिए जिंदा औरत को बगैर देखे निकल जाए. इतने शरीफ तो होने लग गए तो क्या ही बात थी. मगर ये कि मगर वही मैं कह रही हूँ ना कि दैट्स माई असल प्रिविलेज में स्पीकिंग फ्रॉम इन पाकिस्तान. हाँ, बस लोगों ने बना लिया है कि इसमें ना आई ब्लेम द ड्रामाज एज वेल. अब आप देखो ना, जो भी वैम्प दिखाएंगे ना कभी भी ड्रामे में, वो स्लीवलेस वाली औरत होती है. और शरीफ औरत हमेशा, मतलब अगर दिखाएंगे तो उसके सर पे हमेशा दुपट्टा होगा. वो रोती धोती औरत रोती सबको अच्छी धोती, लगती है, सबको हाँ ठीक रोती है. धोती तो औरत अच्छी ये लगती है. अब आप 20 साल से यही चीज़ दिखाओगे. मतलब आई रिमेम्बर वो शहनाज शेख और मरीना खान का ड्रामा,
वो भी वर्किंग वुमेन थी, उनके प्रॉपर दुपट्टे होते थे। मतलब ये कभी नहीं दिखाया कि जी जो घर से बाहर निकल रही है उसका एक ड्रेस कोड अलग है, जो घर में बैठी उसका ड्रेस कोड अलग है। ये डिस्पैरिटी जो है ना, ये पिछले 20 सालों में जब से ये प्राइवेट चैनल्स आए मैंने तो इसी में ही देखी है, और इसने लोगों का दिमाग ख़राब किया। सो खैर बात कहाँ से शुरू हुई थी, ओपिनियन एडिट से कहाँ निकल गई। तो यस, थ्रेट तो समझते हैं बिल्कुल, क्यों ना समझें, क्योंकि वो खुद ही इस काबिल ही नहीं है कि किसी से बात कर सकें, या आम पकड़ के उनकी शादियां करा देते हैं। बताओ, जिनको बात करने नहीं आती, जो इमोशनली स्टेबल नहीं है, हम लोग बस ये देखते ना गाड़ी है घर है बट ठीक है कर लो, अंदर से बंदा कैसा है वो नहीं देखना। अंदर से क्या साइकोपैथ है, क्या उसने क्या क्या जो है वो उसने years ऑफ जो है ना वो इनग्रेन्ड है उसके अंदर के औरत जो है वो निचली ज़ात है, या औरत को जो है दबाना है, या औरत की बात नहीं सुननी है, हाँ दबाना तो या है, मगर चले औरत खैर को बात छोड़ें, अभी कहाँ से करते तो चले खैर। औरत को, या बट एनीवेज दिस आई डोंट सी इट एंडिंग. agree, we both agree with you with your statement कि opinion females are a threat to a family, which is wrong, which is ignorant, मगर yes it exists, and why it exists, what we believed हमने बता दिया। by the way, disclaimer देना भूल गया, मैं दोबारा दे दूँ, we're not professional experts, we're not giving any sort of professional advice. Oh, This is absolutely only, not. we're only listening out to you guys and just sharing things based on our limited experience in life. तो प्लीज़ इसको जो है ना किसी किस्म की एडवाइस या हरफ आखिर नहीं समझेगा। चले, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। Seeing the situation in our country for females where no place is safe, your home, your work, madrasa, etc. I can't, madrasa तो खैर मर्दों के लिए भी सेफ नहीं है। I can't fathom a future where we can breathe in peace without having to worry about our safety. For a little context, I am referring to cases like Noor Muqaddam. I feel like Pakistani men are getting more aggressive day by day. I'm not sure about your situation, but I'm currently studying abroad, but I do have my mother. Not sure about your current situation. क्या मतलब? हमारी situation? Yeah, where अच्छा चलो, okay. okay. I'm currently studying abroad, but I do have my mother, sisters, and female friends back home that I worry about so much. I do not plan to go on going back. In fact, the entire thought scares me to my bones. But what to do? We do. No, but what do we do? How do we live in a society so adamant on not letting us? This is so traumatizing. I apologize if the email is a little harsh, just needed someone to speak on it. Thank you. Best regards. So, yes, absolutely. और इस ख़ासतौर पे नूर मुकद्दम वाले वाक़े ने तो काफ़ी, अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, पहले ज़ैनब का वाक़या तो खैर पहला नहीं था, वो जो छोटी बच्ची थी कसूर की, उससे पहले भी बहुत वाक़यात हुए हैं। बट लेट्स स्टार्ट, फ्रेश मेमोरी होगी ना आप लोगों की। पहले हमने ज़ैनब का वाक़या देखा कि वो एक छोटी सी बच्ची 7 साल की 8 साल की स्कूल के लिए निकली थी, और जो है उसका रेप एंड मर्डर। इट शोक ऑल ऑफ अस, क्योंकि प्यारी सी बच्ची थी, उसके वालिदैन उम्रा करने गए हुए थे और पीछे से उसके साथ ये हो गया। इट वॉज़ वेरी वेरी सैड इंसिडेंट, ठीक है। फिर और चीज़ें होती रहीं, फिर उससे भी स्केरी क्या हुआ, वो जो और सो वी थॉट This is the worst that दिस can इज द happen. वर्स्ट दैट कैन हैपन। पहले एपीएस वाला वाक़या हुआ, चलें वो तो एक जेंडर बेस्ड वाक़या नहीं था, वो तो बस बच्चों के साथ था, ठीक है ना। ज़ैनब वाला वाक़या हुआ, इट स्केयर्ड अस कि यार हमारी भी भांजी हैं, हमारे भी बच्चियाँ हैं, वहाँ रहती हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, राइट। सो इट शोक अस। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन? द नेक्स्ट थिंग वी नो, मोटरवे रेप केस, जहाँ पे एक खातून को उनके बच्चों के सामने रेप किया गया। मतलब दिस इज़ लाइक द वर्स्ट पार्ट। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब लाइक जो रेप इटसेल्फ होता है वो भी कोई लेस ट्रॉमेटाइजिंग नहीं होता, बट उसमें विक्टिम एक होता है। यहाँ पे आपने बच्चे भी ऐड कर दिए, वो बच्चे भी छोटे छोटे, एक 4 साल का और एक 7 साल Traumatize का। them, yeah. वो ज़िंदगी भर के लिए बच्चे ट्रॉमेटाइज हो गए, क्योंकि वो जो चीखें हुई होगी, वो हमने जिस तरह फिल्मों में देखा है, वो एक हलूसिनेशंस होती हैं, और वो अक्सर फिल्मों में देखा है ना कि जो विक्टिम होता है वो चीख मार के उठता है, या अगर कोई वॉर का जो सोल्जर होता है, उस जिसको पीटीएसडी होता है ना, PTSD, पीटीएसडी ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस You've डिसऑर्डर। scarred the children for life. You've scarred them for तो life. सो जब हमने मोटरवे वाला वाकया देखा, सो वी थॉट दैट वाज द वर्स्ट। फिर उसके बाद
और कितने आए, कितने आए वो, फिर वो कितने एक वो जो ब्लैकमेल का जो हुआ था, वो उस्मान मिर्जा जो हाँ वो ब्लैकमेल कर जो रहा था उस इस्लामाबाद लड़के वाला लड़की था। को, एंड वो 1 साल तक बेचारे चुप रहे, एंड इट्स एंड सो सैड. they weren't the first victims by the way, this is what I've heard. उनका काम यही था कि उनके कुछ रेंटल अपार्टमेंट्स थे जो दिस कि इज डिस्गस्टिंग. अब जाहिर है डिशकम डिशकी का दिल करता है कपल्स का, वो हर कोई होटल अफोर्ड कर नहीं सकता, होटल से डरते हैं, तो ये उस तरह की शायद अपेरेंटली प्रोवाइड करते थे और फिर पीछे से आके खुद ही छापा मार दिया, क्योंकि पता है ना कि हमारा फ्लैट रेंट हुआ हुआ है तो किसने किया हुआ और क्यों किया हुआ है। एनीवे तो वो जब देखा उससे भी लोग डर गए कि यार ये मतलब किसी के भी आ, घुस के इस तरह वीडियो बना के, और ये एक और चीज़ कराची में देयर वाज दिस वाइट कोरोला फिनोमिनन कुछ सालों पहले के, बड़ा मशहूर था कि जी वो गाड़ियों को इंटरसेप्ट करते हैं और उसमें से 5-6 लोग निकलते हैं और वो रेप कर देते हैं फैमिली के सामने, और मतलब बहुत स्केयर था उसका। दैट गाय इज इन जेल नाउ आई गेस। तो सो वी थॉट दैट वाज द वर्स्ट। और उसके बाद फिर जब ये नूर वाला वाक़या हुआ और जैसे जैसे लाइक वक्त गुजर रहा है, देयर आर मोर डिटेल्स कमिंग And आउट, they are very horrific, they're and I very don't want to repeat them here, but like हाँ they are just extremely horrific. As a woman, मुझे समझ में नहीं आता. I read them और मुझे दिल चाहता है मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगूँ. It's that bad. दूसरी चीज़ ये है कि इसमें the main problem is, जुनेद, कि एक लफ्ज़ किसी लीडर ने सपोर्ट का नहीं दिया अभी तक. द प्राइम they don't मिनिस्टर care, डिड they don't नॉट बॉदर कि वो जो है ना वो कॉल करके या एक कुछ कोई तो दिलासा दे दो. औरतों पे औरतें कत्ल हो रही हैं, लाइक और अब वाइल्ड. कैपिटल सिटी में हो रही हैं। ठीक है ना, अब कैपिटल सिटी तक बात आ गई है, डिप्लोमेट्स की बच्चियों तक बात आ गई है. फॉर गॉड सेक्स, स्टेप इन. एक मर्तबा कोई तो एड्रेस दे दो, कोई दिलासा दे दो कि ओके, यही बोल दो कि वी वर्किंग ऑन इट. हाँ जिस तरह लाइक काफ़ी सारे ऑफिसर्स होते हैं ना जिनको लोग अक्सर टैग करते हैं, छोटी मोटी थेफ्ट हो जाती हैं, तो दिस कहीं झूठी तसल्ली दे दो भाई. हाँ बोल दो कि हाँ ठीक है कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, बट लाइक फॉर देम इट्स लाइक इट डिडंट इवन हैपन, लाइक दे इग्नोर्ड इट. it's not about a murder, but like the way it was carried out was like inhumane. जैसे कि मैंने कहा वो obviously we're not going to mention the details, मगर जिस तरह की details time to time reveal हो रही हैं, they're just very horrible. I have a big heart and like big stomach to you know go through, tolerate these kind of information, because इस तरह की कोरियन मूवीज बहुत देखी हैं, ग्रूसम और टैरेंटिनो की फिल्में तो खैर उस लेवल की नहीं होती, बट even this outdid those movies that I was referring to. So yeah, और ये तो जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी डिसर्विस ये है कि लोग आगे से लाफ रिएक्ट बनाते हैं ऐसी न्यूज़ पे, और आगे से लोग जस्टिफाई करते हैं कत्ल को कि घर से बाहर निकली थी, कत्ल तो होगी, ठीक है, वो इतना बड़ा रात को निकली जर्नलिस्ट, थी, वो कह रहा है रात हाँ ये तो होगा. वो इतने बाप भाई से इतनी बात नहीं करती थी जितनी उससे बात कर. अरे भाई, तो ये क्या इसका मतलब है कि कत्ल कर दो उसका? यार अल्लाह. मैं 1.5 महीने से पाकिस्तान से बाहर हूँ, मैंने 1.5 महीने अपने बाप से बात नहीं की, ठीक है ना, तो अगर कल को आप निकाल लो कि जी इनके फ़ोन रिकॉर्ड में तो कॉल ही नहीं है, तो यानी इनसे मतलब इसका मतलब थोड़ी मोहब्बत नहीं है. आई डोंट नो मैन, खैर माय डैड इवन डजंट इवन हैव अ फ़ोन. तो ये अजीब की मंतक, और ये मैं क्या बात कर रहा था कि इन चीज़ों को जस्टिफाई करना, हाँ अबे अब आप जर्नलिस्ट की बात करिए, CCPO लाहौर ने बोल दिया था रेप के, वो जो मोटरवे केस था कि रात को निकली क्यों थी. तो जब आपकी जिन्होंने आपको बचाना है उन्हीं की ये थिंकिंग होगी जी बाहर. ये पता है मुझे क्या याद आया था, जब बेनज़ीर वाला वाक़या हुआ था ना, उसके अगले दिन मैं ऑफिस गया था, बिकॉज मेरे आई यूज्ड टू वर्क विद अमेरिकन डॉक्टर्स, उनको नहीं समझ आता था कि हड़ताल क्या होती है, हाँ. बिकॉज उन्होंने कभी ज़िंदगी में चीज़ें देखी नहीं. सर हंगामे हो गए, काम नहीं हो रहा, व्हाट द फक इज़ अ हंगामा, ठीक है. तो मैं पैदल चला गया नाज़िमाबाद, और वापस आते हुए मैं लुट गया, और मैं पैदल था और मुझे लूटने वाले भी पैदल थे, बड़े कैजुअली जो आ रहे हैं उनको लूट रहे थे. सो खैर मैं वहाँ से अपना सामान दे के, मोबाइल, घड़ी, वॉलेट शॉलेट सारा दे के फिर मैं थाने भागा, क्योंकि फ़ोन मेरा नहीं था. फ़ोन मैंने दोस्त से बोरो किया हुआ था कुछ दिनों के लिए, उसका नया अच्छा सा फ़ोन था, तो मुझे बिला वजह 10,000 रुपये की ढस पड़ गई. और ये मैं बात कर रहा हूँ बेनज़ीर का वाक़या, वो 2007 दिसंबर, उस ज़माने के 10,000 आज के 50,000 लगा लें आप, ठीक है. तो मैं फ़ौरन थाने गया,
मैंने बोला सर मेरे साथ ज़रा चले, वहाँ पे मुझे लूट लिया। कह रहे कहाँ? मैंने जी वो फातिमा जना स्कूल है उसकी गली के कोने में। तो मैंने बोला लड़के पैदल खड़े हैं, अगर आप गाड़ी निकाल के चलें तो पकड़ सकते हैं आप उनको। कह रहा भाई पूरे शहर में हंगामा है, आप घर से बाहर क्यों निकले? मैं यू नॉट सपोज टू आस्क मी दैट क्वेश्चन। मैं लुट गया हूँ, मुझे बचाने चले। उसने बोला सर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। वाओ, और आगे से पूछ रहा करते क्या हो? ताकि अब तुमसे कुछ निकाल सके। यस, तो मैंने बोला मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। उसको समझ नहीं आया कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है। तो आगे से पूछ रहा आपकी तनख्वाह कितनी है? बिकॉज दे वांटेड टू एक्सट्रैक्ट सम तो मनी आउट मैंने ऑफ यू बोला ना। मैं सर रिश्ता देने नहीं आया हूँ, मैं रिपोर्ट कराने आया हूँ। कह रहा आपको तमीज़ नहीं है बात करने की। मैं जो बात करूँ मुझे उसका जवाब दो। कह रहे गाड़ी में डीजल नहीं है। फिर बैठो इधर, शहर जल रहा है हमारा। कल हम क्या देख रहे थे ऑन ऑन बीबीसी, जो जो राइट्स होते हैं। 2012 के अंदर जो राइट्स हुए थे, उसके अंदर जिन लोगों ने स्टोर्स लूटे ये थे, बता दें कहाँ हुए थे। यूके के अंदर जो राइट्स हुए थे ओवर रेसिस्ट अटैक्स, उसके अंदर जो था वो लड़के लड़कियों ने, क्योंकि उस ज़माने में गर्मियाँ भी थीं, सो लड़के लड़कियों ने बाकायदा शॉप्स को जाके लूटा था। और इस तरह से लूटा था कि उन्होंने शूज़ अगर पहनने हैं तो वो शूज़ ट्राई कर करके उन्होंने उठाए थे। इस तरह से लूटा था। बट कल हम क्या देख रहे थे कि टिल डेट दे आर सिटिंग देयर एंड दे आर टेलिंग देयर स्टोरी कि हमें पकड़ा गया था और हमें जो थी वो हिसाब देना पड़ा था। भाई उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर 2,500 लोग अरेस्ट कर लिए थे। एक बंदा पकड़ा गया था। किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी जो थी ना आप वो बाहर क्यों निकले थे। आपने दुकान का शटर नीचे क्यों नहीं किया था? आपकी दुकान शीशे वाली क्यों थी? आपने जूते डिस्प्ले पे क्यों लगाए हुए थे? जब आप डिस्प्ले पे लगाएंगे तो चोर तो अंदर आएंगे। हमारे यही कहते हैं ना, जीन्स पहन के निकलोगे रेप तो होगा। ये नहीं बोलते भाई आपका काम प्रोटेक्ट करना है, आप मुझे प्रोटेक्ट करें। हम टैक्स देते हैं तो हमें सिक्योरिटी दें। तो फिर जीन्स वालों से फिर आप टैक्स भी ना लेना, हाँ, उनसे टैक्स क्यों लेते हैं सीधी फिर बात आप? भाई, जब नहीं सेव कर भाई, मैं तो कहता हूँ भाई टैक्स वेव कर दें औरतों से। जब आप उनको सिक्योर, भाई औरत को क्या देना है आपने? सेफ्टी, सिक्योरिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी तो नहीं दे रहे। तो टैक्स भी ना लो फिर औरतों से, औरतों का टैक्स माफ कर देना क्यों चाहिए। इनकी जितनी भी ये 4 औरतें 5 औरतें बैक टू बैक जिनकी खबर आ रही थी, इनकी फैमिलीज़ का जो है ना, वो हमें एक एक की तो फैमिली का पता है, मगर हमें बाकियों की फैमिलीज़ का नहीं पता है कि उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स क्या थे। वो क्या करेंगे? वो केस लड़ेंगे, वो जो है ना वो अपनी जेब से पैसा लगाएंगे। हाउ ओ मच? भाई मैं मेरे लाखों रुपया लगा कर, और फिर इन दी एंड उनको 50 साल 15 साल के बाद अगर उनको जस्टिस मिल रहा है, 10 साल के बाद जस्टिस मिल रहा है, इवन 1 साल के बाद जस्टिस मिल रहा है, तो मतलब दिस इज़ नॉट ऑन उनकी। भाई जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाइड, डिनाइड। इट्स डिनाइड। आप ना दें उनको, जस्टिस ही नहीं मिल रहा। तो फिर आप ऐसे लोगों से टैक्स किस बात का ले रहे हैं? हर साल क्यों टैक्स बढ़ाते हैं आप? हर साल एक एक्स्ट्रा चीज़ पे टैक्स क्यों लगता है? मत लें टैक्स, क्योंकि आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप बेसिक भाई ये प्रोटेक्शन झूठ प्रोवाइड नहीं कर बोलते रहे हैं। हैं कि ना कि हमारी अवाम टैक्स नहीं दी। जितना हम लोग टैक्स देते हैं कोई भी नहीं देता। अगर इन्होंने एडमिट कर लिया ना कि टैक्स देते हैं तो फिर इनको आगे से फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। अब चूंकि हराम खोर हैं तो तो उन्होंने देनी अगर तो है टैक्स नहीं। नहीं देते तो क्या मार दें? वो अगर मैं कहती हूँ कि लोगों के एनटीएन्स नहीं बने हुए क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम्स नहीं हैं, सब कुछ मान लेती हूँ, ऑल देयर प्रॉब्लम्स मैं मान लेती हूँ, मगर ये मुझे बताओ कि इनका जो है ना वो अगर आप बेसिक प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते, व्हाट द हेल इज़ द पॉइंट ऑफ यू सिटिंग इन दीज प्लेसेस इफ़ यू आर गोइंग टू से कि फ़लाँ जो है वो अगर अपनी लाशें लेकर आ रहा है तो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, फ़लाँ जो है वो आके अगर अपनी जो है ना वो लड़कियाँ ड्रेसअप क्योंकि नहीं होती, अगर उनसे मर्द नहीं अट्रैक्ट होंगे तो वो रोबोट होते हैं। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? ये किस तरह की स्टेटमेंट्स हैं फ्रॉम लीडर्स? अ लीडर इज समवन यू लुक अप टू। यू कांट जस्ट से दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। आप दिलासा तो दें, झूठे मुंह कोई बात तो करें कि नहीं भाई आप फिक्र मत करें। उन माँ बाप का सोचें जब आप ये हार्टलेस बातें कर रहे होते हैं। डू यू एवर केयर टू थिंक कि उनके भाई माँ वो बाप क्या सोच रहे हैं? आई वाज गोना टेल यू। वो तो लड़कियां तो मर गई, वो औरतें मर गई, वो नहीं सुन सकती, मगर उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, उनकी फैमिलीज, उनका तो सोचें। व्हाट इज गोइंग थ्रू देयर हार्ट जब आप उनको ब्लेम करें फॉर समथिंग दैट्स सो ट्रॉमेटिक दैट हैपेंड टू देम। let me tell you all something. I have a friend, मैं बताऊंगा नहीं वो कहाँ होते हैं, बट वो पुलिस में है, ठीक है। तो वो भी लाइक माइंडेड हैं एंड ही अंडरस्टैंड्स द फ्लॉज इन द सिस्टम। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इतना फ्लॉड सिस्टम है, ख़ासतौर पे लाइक व्हेन इट कम्स टू रेप केसेस, कि बाहर मुल्कों में दूर रखा जाता है। विक्टिम को और परपेट्रेटर को अलग अलग गाड़ियों में लाया जाता है कि कहीं वो सामने देख के दोबारा ट्रॉमेटाइज ना हो जाए। कह रहा है यहाँ पे एक ही गाड़ी में लेके जाते हैं कोर्ट। सोचो जिस आदमी ने आपका रेप किया आपके साथ वैन में बैठा। उफ उफ उफ। और उसमें भी आपकी ऑडेसिटी ये है कि औरतों के मारने को रोकने के लिए एक बिल निकला
और आप उसी को अपोज और करें, डोमेस्टिक उसको वायलेंस वाला। डोमेस्टिक वायलेंस वो जो है ना वो बिल निकला और आप उसको शूट डाउन कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि ये शूट डाउन हो रहा है, वाह, मारने के खिलाफ है, मारने के प्रो नहीं है वो। व्हाट इज़ दिस? तो मतलब अगर और ये कहते हैं कि जी नहीं औरतों की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, क्या रिस्पेक्ट होती है यहाँ पर? कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। देर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। औरतें कब्र में सेफ नहीं है। ठीक है आप ना, बात अगर कर रही हैं औरत जी। जर्नलिस्ट है तो आप उसको टीवी पे गालियां दे दें किसी भी किस्म की, कोई मसला नहीं है, और उसको आप अटैक कर दें उसके ऊपर, ठीक है ना, फिर कहें ये तो ओपिनियनेटेड है, बहुत ओपिनियनेटेड है, बहुत बोल रही थी, देखो कैसे हंसते हैं ऐसे लोग कि हमने कैसी बस बातें सुनाई, एंड देन पीपल आर लाफिंग एट द वुमन इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुमने कहा क्या है, इसको गाली दी है तुमने टीवी के ऊपर, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन आर यू? नहीं, उसको ऐसे ऐसे वो करते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। जो बाहर निकल सकता है, माओ को लेके निकलो, फ्रेंड्स को लेके निकलो, निकल जाओ, क्योंकि आई डोंट थिंक पाकिस्तान जो है वो इट कैन बेयर एन ओपिनियनेटेड वुमन। इट कांट। Not just opinionated, I mean, इट कांट बेयर एनी वुमन। सही बात है। like women are not safe, children are not safe, तो फिर safe है कौन वहाँ पे? माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ। Minorities are not ठीक है ना, safe, सेक्स आर नॉट सेफ। ठीक है, जो आपका कोई अगला transgenders are not safe, वो नहीं। बेचारे आए दिन कत्ल होते रहते हैं। खैर, it's just a very sad and I'm sure like for a woman it must be a traumatizing situation. मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, मैं मैंने यहाँ पे रहती हूँ, मैं 2 साल से पाकिस्तान नहीं गई हूँ, एंड टू रीड दिस, मैं उस लड़के की शक्ल देखती हूँ, मेरा मेरा खून खौल जाता है। आई इट्स सो ट्रॉमेटाइजिंग, yeah, I'm sure man. it's so traumatizing as a woman. I just don't know what to do for that girl. I just don't know what I can how I can contribute to it. मगर इट्स जस्ट ट्रॉमेटिक। और जब मैंने वो उस जर्नलिस्ट की बात देखी है, जो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, some of the comments, and I'm just thinking, you are disgusting people, you're just absolutely disgusting and vile. भाई बस क्या कर सकते हैं। खैर, so yeah, this is what it is. Let's move on to the next question. Okay, that's a very very long one. अच्छा, साथ में अटैचमेंट भेजी है, उसमें भी सवाल है, ईमेल में भी सवाल है। I'll read that if you don't. नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ। A newlywed problem question for both of you. Dear Mr. and Mrs. Junaid, hope you and your family are doing well. I regularly watch all your podcasts, shorts, videos and learn a lot from them. You always say persistence overcomes resistance, and believe me, I cannot emphasize on this enough. Coming straight to the point, I have a few personal things to discuss with you as I feel that I am at my wits' end to solving my problems. Background: I'm a 27-year-old male from Karachi. I've had severely abusive childhood where I've seen my mother getting beaten by my father, and my father, who never loved any of his children, also abused me and my two younger sisters. I'm the eldest offspring of my mom. On one occasion, my father woke me up at 11 at night because all he wanted to do was to win an argument with my mother by asking me, "Mama कहाँ गई थी दोपहर में? बताओ वरना बहुत मारूंगा." I was traumatized, and because of such abuse, I still find it difficult to comprehend emotions, such as I tend to cry easily. I cried when I didn't get a proper recognition at work. I cry when someone close to me hurts me, and I cry whenever I feel down and whenever I'm depressed. I encouraged my mother to get a khula when I was 15, and we live with her grandparents. She did so, and we have never looked back ever since. Today, one of my sisters is married, and the other is completing her higher education. I got my first job at the age of 19 at a multinational company. I'm now a chartered accountant by profession and working in one of the top drug companies of Pakistan. I'm also a permanent resident of Canada. The problems: I currently finance the studies of my younger sister, which is approximately 500 to 600,000 rupees a year. I thought that I would travel to Canada and earn more than what I do now and would eventually be able to save up some money for my own future. During the time of my application, my sister was getting a lot of proposals, and so I advised my mother that due to limited funds for marriage, my sister and I should get married simultaneously, to which she agreed. My engagement was arranged after 2-3 months. My sister also got a very good proposal, and we both got married in 2020. It has been 6 months since I got married, and my wife, who studied from the best university in Pakistan, is a working lady who tries to create a balance between personal and professional life. She tries to help my mom and grandmother around the house and tries to cook over the weekend when she's free. On the third day of my marriage, my mom told me to leave the house, all because I had told my mom that she should not have gifted gold earrings to my sister's mother in law, as I saw it
as a baseless expense. She said, तुम्हें कुछ नहीं पता कितनी मुश्किल से शादी की है, तुम अलग हो जाओ, अपनी बीवी को भी ले जाओ हैं. I was shocked. I never thought my mother would behave this way. शादी के सारे खर्चे भी करवाए और रिलेटिव से 2 लाख का लोन भी लिया कि मेरा बेटा आपको वापस कर देगा. My walima was hell for me. My mother and all of my relatives who were living in my house were not talking to me or my wife. Mamus and khalas, all the cousins were giving silent treatment to me and my newly wedded wife. On one occasion, I couldn't hold my tears back during my walima, and when the walima pictures came, it looked as if I was not happy with my marriage, while it was the other way around. My family wasn't happy with my marriage. I took my mom out of the house, explained to her, and she understood at that point, and I tried to give it another shot. However, things have been up and down ever since my marriage. Everyone is happy and content, but after 2 to 3 weeks, the silent treatment comes back. No one talks to us, no one acknowledges us being in the room, but then it gets all right. The problem is, if my mother has any sort of an argument with me, she does not talk to me, and that toxicity is transferred to my sister and my grandparents, who also ignore me and my wife. We have spent 7 months in my home, and this shit has been going on and on. One time I was so scared of going home that I sent my wife to her mom's place and I cried in my car for over an hour. I feel like I'm walking on eggshells with my wife, and every wrong step we take will piss off everyone. We try to address the issue by giving regular gifts, clothes, perfumes, and whatnot on a regular basis to everyone around the house. Sounds like a similar story that we know of. बट टू नो अवेल. जुनेद भाई, ऐसा लगता है इज्जत बाहर भी नहीं है और अब घर में भी नहीं है. इन रमज़ान आई gave new notes to my mom in cash and the remaining money which I give her every month. I transferred to her bank account. She got angry at me transferring less amount of money as she expected. I would give her the Eid cash on top of the monthly amount I regularly pay. However, I told her I had given it to her in cash. She didn't talk to me for 3 full weeks, during which she hosted iftar parties, went on iftar parties, and basically lived her own life while completely ignoring me and my wife. My wife and I gave her gifts on Eid, but she would still not talk to us. Following her behavior, everyone else in the house, my grandparents and my sister, stopped talking to us. It was a social boycott. On Eid, no one greeted me. I went alone to the mosque for Eid prayer. But on the very same day, when my sister came to visit, she was welcomed with open arms, and everyone was talking to her and making jokes with everyone, while everyone just ignored us. On the second day of Eid, अच्छा यार हर रोज का लिख दिया, but we get the point, नहीं बात कर रहे. On the second day of Eid, my mother and grandparents asked me to take my wife and leave the house solely on the grounds that me and my wife do not respect the elders. We stay in our rooms all day and my wife does not cook. I tried to reason with them, but they did not listen. I haphazardly found a flat in a good area in Karachi and moved in a week's time. The day I moved, not one person in my house spoke to me or tried to stop me. My mom left the house in her car even before I could say goodbye. It has been almost 3 months since I moved out living on my own with my wife. I wanted to talk to my family, but I wasn't able to because I couldn't find the courage in me to talk to them, and they haven't tried to contact me. Close relatives have distanced themselves from us so much so that I wasn't even invited on Eid gatherings or Eid ul Azha. अच्छी बात है यार, रिश्तेदारों को कौन टाइम पास करता है. I visited my old house on Eid ul Azha, and there were a whole lot of emotions. My family kept blaming me for leaving, and I told them it was their fault as they had asked me to leave. My sister misbehaved with me to the point I had to yell at her to stop. My grandfather called me out and said to not listen to wives. औरत दिमाग खराब करती है. My mom accused my wife of brainwashing me. In the end, I invited my family over to my new home and told my mom that she would always have her own room in my house. But to this day, they haven't contacted me or tried to come over. The whole ordeal has become so toxic. No one in the On one hand, I'm happy living independently, but on the other hand, I miss my family and want things to be right between us. I understand my family has drawn a line which I won't be able to cross no matter how much I try. My question to you is, how do I make things right with my family? I still send them the whole monthly expenses I used to, even though I have a loan to repay due to the marriage and rent utilities to bear. For Mrs. Swag, my question is how a woman in our society should make a comeback and try to make peace with her in-laws in such an environment, since my wife says that she will now always be the bad person in front of everyone, the bad bahu that took her son away from them. Thank you.
ये वाले जो होते हैं ना, फैमिली के जो इश्यूज होते हैं, कसम से दीज आर लाइक द टफेस्ट टू आंसर, बिकॉज इसके अंदर डायनामिक्स आपको जो है ना वो फैमिली की आप खुद समझ सकते हैं, मगर व्हाट आई कैन सी इज़ कि नथिंग दैट यू आर डूइंग. अच्छा, पहली बात तो ये कि आई सॉ दिस पार्ट वेयर यू सेड you were from Canada, which means that you can possibly go back there. So you might want to look into going back, to be honest. मगर I understand कि कोविड की वजह से probably you're not doing that, क्योंकि सबके आजकल वो जो प्रोसेसिंग है वो डिले हुई हुई है. You're paying the expenses. आप समटाइम्स पता है क्या होता है कि यू आर trying so hard to please somebody, and it's just not working out, and maybe giving it a break and disappearing is a good thing. Maybe I if I was instead of you, and again, we've clarified this before कि neither of us are professionally experienced. मतलब अगर हम होते भी तो we cannot tell you what to do. Even a licensed therapist cannot tell you what to do. They can explain your mental situation, they can do whatever, but they can't tell you what to do. So I can only tell you what I would do अगर खुदा ना खास्ते मैं इस तरह की पोजीशन में होती कि जब मेरे हस्बैंड जो है वो एक तो जो है वो एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड से गुजरे. अच्छा, इसमें एक बात और भी आप कर लीजिए. दिस इज़ नॉट योर मदर्स प्रॉब्लम. दिस इज़ नॉट जस्ट योर मदर्स प्रॉब्लम. लेट मी जस्ट टेल यू, आप उनकी तरह से ना थोड़ा सा इसमें एम्पैथी लाइए कि आपकी मॉम हैज़ गॉन थ्रू अ सिवियरली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस. 15 years तो आपके हुए, तो मतलब आई एम अस्यूमिंग कि इफ़ यू आर द एल्डेस्ट, यू आर द फर्स्ट सिबलिंग चाइल्ड दैट शी हैड, तो शी वॉज टॉलरेटिंग योर फादर्स नॉनसेंस फॉर 17-18 years. ठीक है. सो वो उसमें ट्रॉमेटाइज हुई हैं, उसमें थोड़ी सी पोजेसिवनेस आ जाती है बेटों के ऊपर से, स्पेशली बेटों के ऊपर से कि मेरे बेटे, एंड थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं कि सोच के हाय हमने इसके लिए इतना किया और ये तो जो है वो बीवी के आने पे ही पलट गया. है ना कि ऐसा होता नहीं है. और आप कोई बच्चे नहीं हैं, आप कोई नन्हे काके नहीं हैं कि आपको लड़की ने आके कहा कि आपकी बीवी इन दिस केस है, आपको कहा कि अपनी माँ को छोड़ दो और आपने कहा ओके माँ को छोड़ देता हूँ मैं. एंड यू क्लियरली एक्सप्लेन टू अस योर पॉइंट ऑफ व्यू वेयर यू आर सेइंग कि आपकी अम्मी ने आपको कहा था कि आप जाएं. देखिए, अगर वो किसी भी तरीके से नहीं मान रही हैं एंड शी इज़ जस्ट बीइंग वेरी डिफ़िकल्ट, नथिंग यू डूइंग इज़ गुड इनफ. उनको एजुकेटेड बहू चाहिए थी. शी गॉट हर एज वेल. आई एम जिस तरह से आप लिख रहे हैं मुझे लग रहा है कि एक अरेंज मैरिज थी. सो उनकी मर्ज़ी हर वक्त चल रही है, जिस तरह चाह रही हैं पैसे खर्च कर रही हैं. यू आर ऑल्सो पेइंग हर कैश. सो अगर आप पैसे ना दे रहे होते देन आई वुड बी लाइक you're not paying. Who else is she supposed to turn to? मगर अगर ऐसा है, आई वुड से स्टेप बैक फ्रॉम द सिचुएशन कम्प्लीटली. अगर वो अब आप कॉल नहीं, you've made every effort of contacting and keeping in touch with her, I would say step back. और I would say this to your wife as well. देखें, ये वाला अवार्ड जो है ना, बेस्ट बहू वाला अवार्ड, ये किसी काम का नहीं है. ठीक है. ये उस बहू के लिए है जो बेचारी जो है ना, जो सबसे ज़्यादा काम करती रहती है ना, ये उसको मिलता है. ठीक है. ज़रा सी बहू जो है वो ज़्यादा लाइक इंडिपेंडेंट हुई या whatever, वो अवार्ड उससे वैसे ही छिन जाता है. तो ये आस्क योर वाइफ टू होल्ड अ वेरी 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 न्यूट्रल स्टांस टू दिस. ठीक है ना. उनकी लड़ाई आपसे है, आपकी बेगम से नहीं. बट ओके, इफ शी इज़ ब्लेमिंग योर वाइफ फॉर इट, दैट्स देयर प्रॉब्लम. That's not your problem. You are newlyweds. What you are doing now is you're actually depriving your wife of the happiness of a new marriage. ठीक है ना. आगे से जो है वो if you need to go back to Canada, you can't go back because of the COVID situation. She can't get her visa sorted, even though she's educated. There's an odd amount of frustration there. So I would say कि सब कुछ try कर लिया. You've been as nice as you could. Being nice is not helping. So maybe being quiet will help. Try no contact for a month. All right. और I would not say कि आप पैसे रोक दें. ठीक है. But try no contact. Just don't. And then maybe when she does contact you, and I assure you that she most probably will in this situation. ठीक है. So when she does, you need to tell her that as a child you were traumatized, and you need to remind her कि आपने किस किस तरीके से किस किस वक्त पे
उनको क्या, यू नीड टू कीप योर वाइफ आउट ऑफ इट एक्चुअली. ये आपसे उनका मसला है, ये और कोई बात नहीं है. एंड यू हैव टू, यू आर द वन हु नीड्स टू हैव अ हार्ट टू हार्ट विद योर मॉम विदाउट योर सिस्टर्स एंड विदाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स इन प्ले. और अब आपने सब कुछ कर लिया है. टॉक्सिक सिर्फ स्पाउसेस नहीं होते हैं. टॉक्सिक जो है वो कभी कभार हमारे पेरेंट्स भी हो जाते हैं विदाउट नोइंग. और देसी पेरेंट्स को तो बड़ा फेवरेट हॉबी है टॉक्सिक होना, इमोशनल ब्लैकमेल करना. यू नो माई मॉम डज इट, एवरीबडीज मॉम डज इट. तो वो आपको, आई एज अ मॉम डू इट. बिल्कुल मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि लाइक बहुत बहुत आई डू इट. सो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. और ज़रूरी नहीं है कि इफ़ योर मॉम इज़ एन एक्सलेंट मॉम, विच आई नो शी इज़, ठीक है ना, शी इज़ गोना बी एन एक्सलेंट सास एज वेल. A lot of mothers are such lovely moms, but I don't know what happens to them the day they become mom-in-laws. ठीक है ना, वो क्या एक्सपेक्टेशन होती है उनकी, बड़ी वेग उनका एक आइडिया होता है. वट एवर, जो घर बदला है, आई थिंक इट्स फॉर द बेस्ट. रोज़ की लड़ाइयों से बेहतर है कि आप जो हैं वो यू सेपरेटेड, यू मूव्ड योर वे एंड दैट्स फाइन. मगर अब आप जो है ना, ठीक है आप मिस कर रहे हैं वट एवर इट इज़, बट यू आर ऑल्सो डिप्राइविंग योर वाइफ ऑफ द अर्ली मंथ्स एंड वॉट शी इज़ गोना होल्ड इन हर सेल्फ. And I can say this to you as a woman, after 3-4 years, when you have children, or if you decide to have children, she's going to say, you know what, हमारे शुरू के दिन जो थे ना वो तो बस इन्हीं लड़ाई झगड़ों में गुजर गए. So make the most of the time that you have and understand each other. आप लोग खुद हैप्पी होंगे तो आपके घर वाले भी जो है वो आएंगे आपकी तरफ. I think just give it a break. You've tried everything. I really think. And as for your wife, ask her to take a back seat. This is not her doing and she's not caused any of it. और वो बेस्ट बहू वाली बात जो है ना कि बहू ख़राब है, ये है, वो तो बोलेंगी. वो कुछ भी कर लें, शी विल रिमेन अ बहू. और राइट, वो बेटी नहीं हो सकती. सो वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि वट एवर शी डज, शी इज़ ऑलवेज गोइंग टू हैव दैट लेबल. तो आई डोंट थिंक शी शुड बी. एक और चीज़ हो सकती है वो ये कि आप अपने ससुराल वालों को जो है, अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते. आई डोंट नो, आपने उनकी फैमिली की बात नहीं बताई. हाउ डू दे फील अबाउट इट? इफ़ you've tried that as well and they've tried to like sort of say कि हमारी बेटी ने नहीं किया, yet they've tried to defend their daughter, then by all means I think just give it a break. इन लोगों को खुद ही like थोड़ा सा breathing space दीजिए, thinking space दीजिए, and I'm sure inshallah they will come back to you. भाई यही होता है ना, दादा अब्बू भी इन्वॉल्व हैं, पूरा मोहल्ला इन्वॉल्व है, बहनें भी हैं. आई डोंट नो मैन, लाइक इतने सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट बनती नहीं भाई. लाइफ मगर सबकी अपनी whatever अपनी you होनी do, चाहिए. ठीक है, वो एक छत के बीवी को नीचे रहते support हैं. जरूर, मतलब बीवी हाँ. को वो मत करिएगा डू बिल्कुल भी कि नॉट डू नॉट. हाँ, उसको ना ब्लेम करना कि नहीं ये तुम्हारी वजह से हुआ है. इफ़ यू नो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हर, इवन इन फ्रस्ट्रेशन डू नॉट क्रिएट दैट रिजेंटमेंट फॉर हर एंड से ओ ये तुम्हारी वजह से हुआ है. हाँ, इट्स नॉट हर डूइंग. वो होता है ना, माएँ जो है ना कुछ इतनी ज़्यादा पोजेसिव हो जाती हैं कि वो, उनकी सबसे बड़ी थ्रेट उनकी बहू हो जाती है. और फिर बस ये बेटे का झगड़ा होता है एंड में कि ये किसके पास जाएगा, मेरे पास ज़्यादा. फिर ऐसे भी होता है कि जी बेटा काम से आता है, खुद ही कमरे में घुस जाता है, माँ को आके सलाम नहीं करता. फिर ऐसी छोटी छोटी बातें नोट होने लगती हैं कि ये लोग इतनी बार खाने पे जाते हैं, मुझे नहीं पूछते, ये है वो है. फिर वो माँ बिला वजह की ना कंटेस्टेंट बन जाती है. वो जैसे होता है ना, एक ड्रामा था सबा हमीद का, दो बीवियाँ. तो उसमें उन दोनों बीवियों का ना ये झगड़ा होता है. वसीम अब्बास उसमें वो थे, हस्बैंड होते हैं. तो एक बार वो गाड़ी में जा रहे होते हैं तीनों, तो कहती मैं आगे बैठूंगी, वो कहती मैं आगे बैठूंगी. तो उनकी ना कॉन्स्टेंटली होती है कि वो उसको कितनी बार लेके गया, तो फिर मेरे साथ कितना. तो माए, पाकिस्तान में सास और बहू की ये लड़ाई है. हाँ यही होती है, आगे बैठने वाली लड़ाई है, हनीमून पे साथ जाने वाली लड़ाई है. और जो बहू ने परफ्यूम लगाया, सास को भी वही चाहिए. हालांकि परफ्यूम इतनी पर्सनल चीज़ होती है क्योंकि आपकी उससे एक एसोसिएशन हो जाती है. मीन लाइक इफ़ योर स्पाउस स्मेल अ सर्टन वे, तो फिर आपकी वो एक इंटॉक्सिकेशन उसके साथ एक वो होती है. कल को माँ से वो खुशबू आए, अजीब लगता है भाई, बड़ा ऑकवर्ड सीन हो जाता है. खैर, तो आई वुड से द सेम थिंग. मैं तो ये कहूँगा पैसे भी रोक दें. बोलो यार मैंने अभी कर्ज उतारने, तो अभी मैं नहीं कर पा रहा, तो अभी आप देख लें कुछ महीने खुद से. ऐसे ही कर लो, खुद ही लाइन पे आ जाएंगे. क्योंकि उनको पता है हमारे सब कुछ करने के बावजूद भी जब रोटी पानी चल रहा है,
तो why would That's a bit would harsh. I know it's a bit harsh, लेकिन तो बहन की पढ़ाई भी है and you know like like I mean yeah I know ये मगर आधा बहन आधा को तो कर आप दो. ये कम से कम ये कह दें कि you're very ungrateful हाँ I for mean like speaking to me in that way. You हाँ shouldn't be getting involved. छोटी हाँ बहन है, you बहन को shouldn't be बोलो involved. मैं इतना मेहनत से कमा के तुम्हें पढ़ाने के लिए भेजता हूँ, ये सीख के आती हो कि भाई से बदतमीजी करनी है, भाई को घर से निकालना है. तो इससे बेहतर है भाई घर पे ही बैठ जाओ, खुद ही जाके कमा लो अपना और खुद ही पढ़ाई फाइनेंस कर लो. मैं तो यही बोलता. भाई बहन को बताने की ज़रूरत नहीं है. यू नो लाइक एक चीज़ मुझे एक और भी चीज़ आ रही है कि एक जो लिख के ईमेल करके कोई चीज़ जो आप दिल की बात लिखते हैं ना, वो एक मर्तबा जो है ना वो बंदा एक आप एक ड्राफ्ट कीजिए एक ईमेल टू योर सिस्टर एंड यू राइट दिस एंड अगर और कुछ नहीं कर सकते एक ख़त अपनी अम्मी को लिखिए और उनको यही कहिए कि मैंने आपका इस वक्त में साथ दिया था और मैं अभी भी साथ दे रहा हूँ, मैं मज़ीद साथ देने को तैयार हूँ, मगर अब मुझसे जो है ना वो ये नहीं होता कि मैं जो है ना वो अपना घर तो नहीं तोड़ सकता आपकी वजह से. हाँ ऑब्वियसली लाइक आपकी बीवी भी आपकी इज्जत है और आप एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेकर आए हो ना उसके घर से, तो यू हैव टू स्टैंड बाय हर साइड एज वेल. उसकी तो कोई गलती नहीं है इस सारे सिचुएशन में, मगर फिर भी बेचारी है वो विलन बन गई, अब जिंदगी भर के लिए वो विलन है. सो दैट्स ऑल्सो वेरी रॉन्ग. आई थिंक मैं एक खत लिखना वुड बी वेरी वेरी डिसेंट. मैं एक खत लिख के खत क्या और व्हाट्सएप लिख फारिग भाई, व्हाट्सएप लिख. नहीं व्हाट्सएप पे फिर जवाब आता है ना. खत पे यू आर नॉट कि मैं जा रहा हूँ और आप लोग ये देख लीजिए कि आपको अपना बेटा रखना है नहीं रखना. देखें ये सब बातें ख़त्म हो जाती हैं, 1-2 साल की मुश्किल होती है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इट्स गोना बी ओवर. मगर ये जो रिजेंटमेंट है ना ये पूरी ज़िंदगी की है कि मेरे शौहर ने मुझे इसलिए टाइम नहीं दिया क्योंकि घर में फसाद चल रहे थे. सो यू रियली नीड टू यू नो लाइक अगर आप कट ऑफ बगैर कहे नहीं करना चाहते या यू नो आपको ये ऑकवर्ड लगेगा तो कम से कम ये तो कीजिए. अपनी बहन को तो खैर आप ये सुना सकते हैं, यू हैव एवरी राइट, बिकॉज यू नो 5-6 लाख ईयरली फीस देना इज़ नॉट अ जोक. आप उसको कह सकते हैं यू हैव नो राइट टू स्पीक विद इन दिस. वही 6 लाख में टूर कर लेता तुर्की का फिट विट. है देखना हाँ, जरा घूमना कितने फिरना अच्छे हो वो जाता. हो जाता है. हाउ मेनी मेमोरीज वुड यू हैव विद 6 लाख रुपए ईयर. व्हाट इज दिस. तो बहन को तो समझाइए, मगर माँ को मैं ये कहूँगी, अपनी अम्मी को आप ये कहूँगी कि आप एक या तो एक लेटर लिख दीजिए, राइट योर हार्ट्स वट एवर इज इन योर हार्ट, राइट इट आउट and send it to her and say I'm not going to be contacting you further. If you need me, I'm always here for you. By the way, Mrs. I know you're very passionate about these topics, but also कान ज़रा तेज़ रखिएगा अगर ऊपर से रोने की आवाज़ आए. ओके जी, ये नेक्स्ट ईमेल बहुत ही रंगीन किस्म की आई है क्योंकि बड़ी हेडिंग, मतलब भाई ये कोई पाक स्टडीज़ का पेपर नहीं है, 9th क्लास का हेडिंग बना के कलर भी किया हुआ उसके ऊपर हाईलाइटर से. चलो यार मेहनत की बच्चे ने, बच्चा ही है वाकई. Assalamualaikum. People like you guys have helped me a lot in my life. You have no idea how much you've changed my perspective, and I'm very grateful to stumble upon you guys. I'm a 20-year-old student studying in Karachi. Um, I have focused to make myself financially, emotionally, and mentally stable in these 6 years before marriage. अच्छा पहले से डिसाइड है अगले 6 साल में हो रही है. शादियों का पता है इनको, कल क्या खाना है वो माँ पूछेगी, क्या क्या खाना है वो नहीं पता होगा. I have 4 siblings and a brother who is 1 year younger than me and younger sisters. The youngest is 4 years old. There is not a single day where I can just talk about my future plans with my parents when they can't even bother fighting with arguments among themselves. It's been over 40 years. अबे 40 साल से लड़ रहे हैं, 40 साल से लड़ रहे हैं. 20 साल के हैं. सबसे बड़ा है, एक सेकंड, is he the eldest? I have 4 siblings, a brother who is 1 year younger than me. अच्छा And young sisters. The youngest sister is 4. समझ नहीं आ रहा. I don't understand how they've been शुरू के fighting 20 for 40 years. शुरू के 20 शायद वो अपने बचपन से लड़ रहे हो, कज़न होंगे. ये तो 20 साल के हैं तो 40 साल से इनको कैसे पता कि लड़ाई. अरे तो पता ही होगा ना, माँ बोलती होगी ना. According to information from both parents, क्या तो रहा है आगे. Even though I belong to upper middle class family, been to several countries abroad and financially stable, but how can I be happy in this type of situation in my house? Everyone from my cousins and friends think I'm living a peaceful life, but unfortunately it is the exact opposite. What kind of arguments they fight about? They fight over small things like बर्तन धो दिया करो, घर साफ किया करो, ये चीज़ यहाँ क्यों रखी हुई है, वहाँ क्यों रखी हुई है, etc. You won't believe there are days where we siblings never went to guests and relatives' house on Eid and Ramzan because of their arguments. One time I ran to my cousin's house so that I can sleep over and spend the rest of my time of Eid there. It's very unsettling.
I cry. I feel like quitting sometimes or running away from my house and just living under the bridge or street. However, I also think about my siblings, even the youngest. How are they suffering in this misery? By question, how can I help myself? Sometimes I feel like mother is talking the truth, and sometimes I feel like my father is talking the truth. बात तलाक तक भी जा चुकी है अब तो. अबे भाई 40 साल नहीं दी, अब भी नहीं देंगे. दिस इज द रीजन व्हाई आई वांट यू टू आंसर. ओके, सो 40 साल से लड़ रहे हैं, ये अगले 40 साल भी लड़ेंगे भाई, ये ऐसे ही है. नहीं हो सकता. या आई मीन लर्न टू लिव विद इट बेटा. This is so sad. If you like, बच्चा कह रहा है कि मैं किसी ब्रिज और स्ट्रीट के ऊपर जाके रह लूँ. दिस इज सो सैड. आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स जो हैं वो ये सोचते क्यों नहीं है. यार आई डोंट नो, कुछ लोगों में यही है, वो लड़ झगड़. हमने कुछ लोगों को ना ज़िंदगी भर लड़ते झगड़ते ही देखा है, मगर साथ ही रहते हैं. मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ भाई, ये ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स साथ रहें, ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स खुश हों जहाँ भी रहें, साथ रहें या अलग अलग रहें. बच्चे खुश पेरेंट्स देखना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं देखना चाहते, ज़िंदगी भर के लिए स्कार हो जाते हैं. और ये देखो 20 साल के और अभी से ऐसे सोच रहा है, डिस्पाइट हैविंग द लग्जरीज एंड द प्रिविलेज. वो कह रहा है मैं सड़क पे सोने को तैयार हूँ. इट्स जस्ट वेरी सैड. बट आप इसमें यही कर सकते हैं कि सब्र ही करें. 20 साल के आप हो गए हैं, थोड़े अरसे बाद आप कमाने लग जाएंगे. you'll have your own family and everything, but just make sure you don't repeat the cycle. होता ये है कि जो चीज़ें Yes. बच्चे देखते हुए आते हैं ना, फिर इनएडवर्टेंटली यानी ना चाहते हुए भी वो भी वही बन चुके होते हैं अपने माँ बाप जैसे, लेकिन उनको पता नहीं होता. क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी यही चीज़ देखी थी. सो दे थिंक कि दिस इज़ द वे लाइफ वर्क्स. तो मैं आपको यही बोलूँगा कि खैर नाउमीदी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतनी तो दुनिया हमने भी देखी है, ऐसे लोग नहीं सुधरते. तो बेहतर यही है कि एक्सेप्टेड एज अ रियलिटी कि दिस इज़ हु दे आर. कितनी कुछ petty लोगों बातों पे के लड़ाइयाँ हो रही हैं कुछ बच्चों से. लोगों का ना कुछ लोगों का गुजर बसर ही लड़के ही होता है, बिकॉज दे थिंक ओनली दैट्स हाउ दे कैन एम्बार्क देयर इम्पोर्टेंस. और कुछ लोग समझते हैं कि जस्ट बिकॉज उनकी आवाज़ ऊंची है तो उनकी बात भी ठीक है. जो जिनकी बात ठीक होती है ना, उनका लहजा हमेशा धीमा होता है, जैसे आपने मेरा हमेशा सुना है और मेरी बेगम का भी सुना है. तो तो जो है ना, तो कुछ लोग बस धौंस जमाने के लिए घर में शोर करते हैं, आवाज़ एक दूसरे से सबकत ले जाने की करते हैं, तो उसमें फिर घर का माहौल ख़राब होता है और फिर बच्चों पे बहुत गहरा असर पड़ता है. मैं आपसे बस यही कहूँगा कि लर्न टू लिव विद इट, ट्राई टू. उनको समझाएं. अब आप 20 साल के हो गए, अब आप इस पोजीशन में हैं कि उनको बिठा के समझा सके. समझेंगे वो फिर भी नहीं, लेकिन कम से कम उन तक ये बात ज़रूर जाए कि आप लोग सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं और ये आपकी लाइफ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है. फिर शायद वो इतना ख्याल कर ले कि बंद कमरे में लड़ना शुरू कर दे. लड़ेंगे वो फिर भी, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ. फिर शायद आपके सामने नहीं, बाहर जाके लड़ लें, गाड़ी में बैठ के लड़ लें, त्योहारों को छोड़ दें. त्योहारों को छोड़ दें ज़रा. ईद से पहले लड़ लें या ईद के बाद लड़ लें, गोश्त ख़त्म हो जाए उसके बाद लड़ लें. समझ रहे हैं? तो बस कोशिश ये कीजिएगा जब आप बड़े हो गए ना, तो आपने ये साइकिल रिपीट नहीं करनी है, आपने इस साइकिल को इधर ही ख़त्म करना है, वरना फिर अब्यूज़ इसी तरह चलता रहता है, वो ट्रांसफ़र होता रहता है. जिस तरह हमारे जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं ना अगली नस्ल में, तो इसी तरह हमारी आदतें भी ट्रांसफ़र हो रही होती हैं. Absolutely, हाँ. तो कोशिश करें वो आदत आप तक ना आए. भाई यही दुआ करें कि यू डोंट टर्न आउट टू बी लाइक योर पेरेंट्स. मैं तो आपको यही कहूँगा. बस ख्याल रखिएगा बेटा, और ऐसी सोच जहन से निकाल दें, सड़क पे रहने की, ब्रिज के नीचे रहने की. किसी हीरोइनची ने इंजेक्शन घुसेड़ दिया ना, तो फिर पता चल जाएगा. ये मत करना. ऐसा बिल्कुल ये बेवकूफ़ी हाँ, ना ये करें. कभी मत करें. नेक्स्ट वन, साइंस टू लुक फॉर in a to be life partner while being in a relationship. Hello, I really love to listen to your podcast in which your wife is with you. क्यों, बाकी में क्या कीड़े लगे हैं, कांटे लगे हैं, मैं क्या भौंक रहा होता हूँ बाकी टाइम, वो भी अच्छी होती हैं. My question might sound precise but is actually an important one. I'm in a relationship with a guy and we are working on and planning on our future together. Soon to be married when we will think the time is right. My question is, while being in a relationship, what signs should I look for in him? And what aspects of mine should I work on to have a peaceful life? दिस इज़ जो साइंस हैं, अच्छा इसमें ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इफ़ योर स्पाउस टू बी, अगर आप किसी के साथ फ्यूचर प्लान कर रही हैं या कर रहे हैं, तो उनकी एग्जैक्ट आपकी जैसी थिंकिंग हो. बेसिक्स जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि दे रियली शुड मैटर, मगर ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बातों पे जो है वो आप जैसे हो. थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर आएगा.
मुझ में और जुनेद में भी है, और हमेशा होता है एक आई भाई थिंक आपने थोड़ा सा, फोटो स्टेट से थोड़ी शादी करनी होती है। या यू कांट मैरी द, अगर मैं सोचूं कि अगर इफ जुनेद बिकेम एग्जैक्टली लाइक मी, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लिव विद माई सेल्फ, इट वुड बी जस्ट बी वेरी डिफिकल्ट, सो या आई वुडंट लुक एट दैट. सो इसमें जो है ना वो बेसिक डिस्कशन जो होनी चाहिए है वो ऑब्वियसली ओवर, अगर आप एक करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं तो कि एक तो आप ये सोचें कि जी आपके गोल्स क्या हैं शादी में, आप क्या ये चाहते हैं कि मैं करियर छोड़ के और आपके घर वालों की खिदमत करूं, या फिर आप ये चाहेंगे, यू वुड हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम कि अगर मैं अपना करियर बनाऊं, दैट्स वन थिंग दैट्स द मेन थिंग, दैट फिर उसमें उसके बाद इफ़ यू ड्रेस अप in a certain way, is he or is she okay with the, अगर आप वेस्टर्न पहनती हैं तो is he okay with that sort of thing, या वो कहेगा कि नहीं जी आपने स्कार्फ पहनना है शादी के बाद. अभी अभी खुशी के अंदर डोंट अग्री टू एनी थिंग दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, ये मैं आपको बता दूँ. इसमें चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, इनके ऊपर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. कुछ लोग होते हैं जिनको बच्चे नहीं चाहिए होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारे बच्चे चाहिए होते हैं, सो उसको भी डिस्कस किड्स. भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जो बस चाह रहे होते हैं कि भाई अभी जितना पहनना है पहन लो, शादी के बाद तुमने स्कार्फ पहनना है, ये पहनना है, वो पहनना है. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन एक्सपेक्टिंग योर पार्टनर टू बी इन अ सर्टन वे, मगर जो भी है पहले डिसाइड कर लें. ये नहीं सोचे कि शादी के बाद मैं मना लूँगी, शादी के बाद ये कर लेंगे. शादी से पहले करना है आपने जो भी करना है. हर चीज़ में जो है ना आपने बैठ के बात करनी है. फाइनेंसेस आपने देखने हैं, अगले में पोटेंशियल कितना है, अगला पैशनेट कितना है अपने करियर को लेके, गोल ओरिएंटेड है या नहीं है, या घर बैठ के खाने वालों में से है, या वो आपकी जायदाद पे नज़र लगा के बैठा हुआ है, या आपके अब्बू ने जो है ना 1980 में पीआईए ने उनको कोई प्लॉट दिया था, आज वो 1 अरब का हो गया तो वो उस नज़र पे बैठा हुआ है. ये सारी चीज़ें आपने अभी देखनी है. दूसरा आपने देखे आप जितना भी कर लें इसका ना कोई प्रिसाइज मैकेनिज्म नहीं है, ये कोई पॉलीग्राफ, देयर इज नो फॉर्मूला. देर इज़ नो फार्मूला टू इट. बाकी ये कि बस यू कैन ओनली प्रिजम्पशंस ही हो सकती हैं बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंसेस. आपने बस ये देखना है कि इंसान कितना एम्पैथेटिक है, कितना वो सिंपैथेटिक है टूवर्ड्स अदर्स, कितना वो अपने इमोशंस के साथ इन सिंक है, किस लेवल की टॉक्सिसिटी है उसमें, वो आपको कितना जो है ना प्रायोरिटाइज आपको या आपकी रिलेशनशिप को करता है ओवर हिज ओन नीड्स कि नहीं करता. ये सारी चीज़ें आपने अभी देखनी है और ये चीज़ें आप अभी देख सकती हैं. बाद में फिर जो है ना फिर बहुत देर हो जाती है. बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो दे नीड टू बी डिस्कस्ड इन ब्लैक एंड वाइट. ग्रे एरिया नहीं होता कि ठीक है जी शादी हो जाएगी फिर हम देखेंगे, ऐसा नहीं होता. मजहब तक पे, हाँ रिलीजन मज़हब, तक हाँ पे अगर भी. आपको मज़हब का भी अगर कोई डिफरेंस है या आपका सेक्ट का भी कोई डिफरेंस है, जैसे वो शिया सुन्नी फॉर एग्जांपल अगर कर लें शादी, ठीक है ना, हाँ ठीक है जी बच्चों का हम डिसाइड कर लेंगे. फिर जब शादी हो जाती है आपका भूत उतर जाता है, जब आप फिर एक दूसरे को जहर लगने लगते हो, ठीक है ना, हल्के हल्के लगने शुरू हो जाते हो. और फिर जब बच्चे होते हैं फिर आप लड़ते हो, नहीं जी हमें तो अपने वाले सेक्ट पे चलाना है, वो कहता है मैं अपने वाले पे चलाना है. ये सारी चीज़ें जो है ना, खैर ये तो एक बड़ी नीश किस्म की प्रॉब्लम है, हर किसी के साथ तो खैर ये नहीं होती. एज इन के इट्स नॉट अ वेरी वेरी कॉमन थिंग टू हैपन. या बट पॉइंट बीइंग कि इस तरह की जो भी निटी ग्रिटीज़ है ना आपने पहले ही बैठ के, भाई इट्स लाइक यू टेकिंग अ जॉब. जब आप ये नहीं कहते सर आप जॉब दे दे, सैलरी की बात अगले महीने कर लेंगे. आप पहले डिसाइड करते हो सैलरी योर क्या दोगे, कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बिफोर मेरे यू गेट. वर्किंग आवर्स क्या होंगे, मेरे 5 दिन काम करना है, मैंने 6 दिन काम करना है, मुझे आउट ऑफ स्टेशन कितना जाना होगा, वर्क फ्रॉम होम में क्या लिमिटेशंस हैं, मतलब मैं 12-12 घंटे नहीं बैठ सकती. ये सारी चीज़ें आप पहले डिसाइड करते हो फिर जॉब लेते हो ना, या पहले जॉब ले लेते हो और फिर डिसाइड करते हो सर तनख्वाह कितनी देंगे. अच्छा, और ये भी जैसे ना स्पेशली ये जॉइंट फैमिली सिस्टम वाली प्रॉब्लम एक है कि जी अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि योर स्पाउस इज़ गोना कीप यू इन अ सेपरेट हाउस, एंड एट द मोमेंट ही सेइंग नहीं अम्मी अबू अभी तो नहीं मानेंगे, मगर जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम मना लेंगे. फिर नहीं होगा. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. तो या तो अगर आपने करना है एंड ही इज़ रियली एडमेंट कि आपके साथ, तो फिर आप कहीं बाहर जाने का सोचें या कुछ करें, लाइक यू आर डिसाइडिंग योर फ्यूचर, देयर शुड बी अ वे आउट कि नहीं we have to. I know of this friend of mine, वो नहीं जिसकी हम लोग शादी में भी गए थे उधर, वो लंदन का था और वो जो थी वो उधर की थी जहाँ की मैं हूँ, है ना. ओके तो वो लड़का जो था वो सबसे छोटा था घर के अंदर. ओके
सो ही वॉज लिविंग विद हिज पेरेंट्स, ठीक है. तो यहाँ के तो घर के तुमने स्ट्रक्चर्स देखे, देयर इज नो privacy as such for a couple. दरवाजों में कुंडी नहीं होती भाई. ठीक है, देयर इज नो privacy as such for a couple. उसकी शादी 1 साल डिले इसलिए हुई क्योंकि both the sets of parents were saying वो जहाँ की थी वो लड़की, उसको एक इंडिपेंडेंट वो चाहिए था, ठीक है ना. तो वो कह रहे थे या तो आप अपने नीचे वाले घर को जो है कन्वर्ट करके उसके लिए एक छोटा सा किचनेट बनवा दीजिए, उसको एक अलग घर मतलब एक वो दे दीजिए ताकि वो जिस तरह चाहे रह सके. और लड़ाई, और वो कह रहे थे कि हमारा सबसे छोटा बच्चा है, हम इसको कैसे अलग करते हैं अपने से. 1 साल शादी डिले हुई सो दैट दे कुड गेट दिस. देखें इतनी बड़ी ये स्टेप है. उन लड़का लड़की ने अपनी मर्जी से कर रहे थे, बट दे वर हैप्पी टू लेट गो ऑफ द मैरिज. अगर ये बात नहीं फिट हो रही थी, अगर इफ वन सेट ऑफ पेरेंट्स वाज अनहैप्पी, दे वर इट मेंट सो मच टू देम. सो डू ये फैमिली, क्योंकि इतना पाकिस्तान में इतना फैमिली, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम वाली चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा प्रिडोमिनेंट है. भी मेरी अम्मी ने तो कहा हुआ था मेरे भाई को कि तुम्हारी जैसे शादी हो जाए तुम भले स्टूडियो में जाके रह लो मगर अलग रहो, क्योंकि तुम्हारी बीवी जैसे चमचा रखेगी किचन के अंदर, मुझे वो पसंद नहीं होगा, मैं किसी और तरह रखना चाहूँगी, वो उधर से लड़ाई हो जाएगी, तो अलग हो जाओ तुम. वो अलग बात है, वो नहीं हुआ, मगर माई मदर हैड सेड कि ये कर देना. बहुत से पेरेंट्स ऐसे नहीं होते. सो इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि आप ये फैमिली का ये एस्पेक्ट देखें. लोग बिल्कुल फंस जाते हैं, फिर जाके कपल्स फंस जाते हैं, एंड देन यू नो लाइक दे स्टार्ट हैविंग प्रॉब्लम्स विद इन देमसेल्व्स. सो किड्स, career, and this is not maybe you're not compatible mentally, you know. अभी लग रहा है, बाद में शादी के 1 साल के बाद लगे कि okay this is not the person I really married, you know, क्योंकि फिर उस वक्त आप एक साथ रह रहे होते हैं and you understand कि maybe you don't like lazy men and the person is lazy, या maybe you like to you know be a bit chillaxed and वो हर वक्त you know सफाई वगैरह का करता रहता हो कि सफाई करो, ये करो, वो करो. So I mean देर इज़ नो 100% फार्मूला कि कोई शादी जो है वो कामयाब हो जाएगी या नाकाम होगी या वट एवर. देर इज़ नो 100% फार्मूला. मगर मैं आपको ये बेसिक रेड फ्लैग्स बता रही हूँ कि यू नो लाइक आई वुड डू इफ़ आई वॉज इन योर प्लेस. Again, I'm not a professional. I would definitely look at what is the you know क्या कहते हैं इसका जॉइंट फैमिली सिस्टम का मैं देखूँ. करियर, इफ़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई वुड से कि करियर का ज़रूर देखें. बच्चे, you know what happens, are we planning to have kids, are we not planning to have kids. So सबसे बड़ी बात ये है कि if one of the spouse also wants to go out of the country, are you prepared to move, are you not prepared to move. वो सब कुछ जो है ना वो देख लीजिए and then you know go for it. भाई आप ये देखें कि वो आपके लिए दरवाज़ा खोल के रखता है या खुद ही खोल के आगे निकल जाता है. ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है. हमारे यहाँ तो खैर लोगों को आदत ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता. दिस इज़ लाइक क्लास ए लेवल नार्सिसिज्म कि कुछ समझना ही नहीं. कि अगर वो आप उनको गाड़ी में लेने जाती हैं और उनका दरवाज़ा पहले है, तो जब तक आप चूँकि जिनकी गाड़ी है वो गाड़ी में नहीं बैठती तब उसके बाद बैठते हैं, या वो पहले ही बैठ जाता है अज्यूमिंग कि वो उसके बाप की प्रॉपर्टी है. आप समझने में क्या कह रहे हो, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. ये खैर पता नहीं मुझ जैसा ही साइको आदमी इतनी निटिग्रिटीज़ में जाता है. या फिर जब आप दोनों रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो एक तरफ एक ट्रैफिक आ रहा होता है, दूसरी तरफ दूसरा, तो जहाँ जहाँ से ट्रैफिक आ रहा है क्या वो घूम के उस साइड जाते हैं कि अगर गाड़ी लगे तो पहले उनको लगे. ये बहुत Junaid used to do that with me. Used He to? he used to. भले हमने रोड क्रॉस नहीं की ना फिर उसके बाद ऐसे, बट Yeah. एवरी टाइम वी ट्रैवल्ड ही वुड डू दैट के यू नो. तो मुझे ये बात फिर बाद में महसूस होने लगी कि मैं अपने बच्चों के साथ भी करती थी. तो जो प्रोटेक्टिव पार्टनर होता है वो हमेशा अपने आप को जो है वो ऑन कमिंग ट्रैफिक के पास ले आता है, यू नो. सो यस, that's one sign. That, like, you put yourself into danger in order to save the It's others. a very very small gesture, or not necessarily everybody would do it, मगर it gave me और मैं एक बहुत इनसिक्योर औरत हूँ, you know, sometimes I can be very very ridiculous, I admit it, मगर you know like उसमें मुझे बहुत एक सिक्योरिटी महसूस होती इस चीज़ में कि you know okay fine. हालांकि मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ अपने सब उसमें, मगर मुझे बहुत एक सिक्योरिटी इसमें महसूस होती थी कि माई हस्बैंड इज जस्ट, इट्स अ वेरी स्मॉल जेस्चर, वेरी स्मॉल, बट इट मीन्स सो मच. सो इफ दैट्स हैपनिंग, दैट्स लाइक यू नो अ रियली बिग वाइट फ्लैग फॉर यू. All right, moving on to the next one. बल्कि ख़त्म हो गए.
ओके सो आई थिंक दीज वर इट फॉर टुडे। हाँ, 1.25 घंटा हो गया है। अभी हमें मिनी स्वैग की हल्की सी आवाज़ आई थी, वो करवट लेते हैं, मुंह से डमी निकल जाती है तो फिर मैं होता है, बट आई थिंक किसी ने डमी डाल दी उनके डमी मुंह में. डाल दी उनके मुंह में, which is a good sign. So I hope you guys found this episode very useful. I will try. Like the time is short. I'm very soon traveling back to Pakistan. दिल तो नहीं कर रहा, बट लाइक वर्क कॉल्स तो मजबूरी। तो विल ट्राई टू शूट एज मेनी एज वी कैन। Yeah. अभी भी देखें रात का 2:30 बज चुका है, और यहाँ पे हम ज़रा जल्दी उठने के आदी हैं और बहुत जल्दी सोने के आदी हैं, तो वी लाइक गोइंग आउट ऑफ अ वे टू प्रोड्यूस दिस, बट इट्स ओके। आप लोगों की ज़ाहिर है ख्वाहिश होती है, और आप लोगों ने सवाल भी भेजे हैं ख़ास तौर पे for my wife, so obviously have to go an extra mile. So I hope you guys enjoyed this episode, and do not forget to subscribe. And if you want to support on Patreon, you can do that on patreon.com/ganjiswag. फिर इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Okay, Khuda Hafiz.